हमन चार्जर लगाना इसका लैपटॉप को भी। आपके कहने पे जाऊंगा मैं आपके कहने के बाद चले जाना सर लाइव स्टार्ट हो गई ना, 2 लोग। मोबाइल में चेक करना है, साउंड 0 पे। Hello, good morning. Good morning, all of you. Welcome to the national level webinar on periodic properties. We will start the interactive session soon as more students join this session. Thanks for joining our session. Please share the link with your students, classmates, so that they may also join the session as soon as possible. Society for Promotion of Science and Technology in India welcomes you all in this live national level webinar on properties of periodic table. We will start the session soon as more students will join the session. I hope the video is properly visible to all of you and sound is also clear. Society for Promotion of Science and Technology in India, SPSTI, is an NGO, non-governmental organization, not-for-profit organization that works for the popularization of science and technology in India through its various activities, outreach activities like conducting lectures, experimental workshops, summer camps, and many other activities. Students are joining with us. This is our second session in chemistry, online session in chemistry by Professor Vivek Sharma, and third session including practical workshop. This live webinar is sponsored by NCSTC, National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi, under the project Mobile Science Laboratory, Circus of Science,
विज्ञान का जंतर मंतर. Today's session interactive webinar will be on periodic table and its properties. As you all know, periodic table is an arrangement of elements in rows and columns that was invented by Russian scientist, Russian chemist Dmitry Mendeleev in 1869. And fortunately, 150 years have been completed of this periodic table in 2019. So 2019 is also celebrated as International Year of Periodic Table. So we also conducted many interesting activities to commemorate this International Year of Periodic Table. We conducted many expert lectures from eminent scientists of Punjab University, Naipar Mohali, and many other eminent professors of Chandigarh and Mohali on periodic table. We conducted a poster competition and essay writing competition online through online mode on periodic table, on the theme periodic table. Students are joining with us. I hope the voice quality is better today. The students who have joined the session may share the link, are requested to share the link with their friends so that they may get benefit from this online session, interactive session. So today's seminar or webinar will be delivered by Professor Vivek Sharma, who has been teaching basics of chemistry to the advanced chemistry to the students of +1 and +2 who are willing to seek admission in NEET and IITs. He has an experience of 20 years, more than 20 years in the coaching field. Many of his students are in studying in renowned institutions, IITs, ICERs, and NITs, National Institute of Technology. So today he will join us shortly to discuss the periodic table, the arrangement of elements in the periodic table, then properties like electron affinity, electron negativity, atomic mass, atomic number, etc. So he will discuss all these basics with you all. The amazing thing is that he will teach you the techniques to remember the periodic table in a short period of time, 15 to 20 minutes. So all the students are requested to take notebooks and pen with you so that you may write what is going to be taught to you. Secondly, if possible, you can take your chemistry book and look at the periodic table in front of you, because that will be much clear to you. So please take periodic table and notebooks. You may ask your queries through our comment box. That will be answered after the session will be completed. I also request all the attendees that they may write their name, school name, class in the comment box so that we may know our audience from from which school they are, from which state they are. So I am requesting Professor Vivek Sharma now to start the session. Professor Vivek Sharma will now join the session. Live interactive webinar on periodic table and its properties. Hello, dear students.
Today in this webinar, Dear students, hello dear students. Today in this national webinar, we will first discuss on the techniques, how to cram or memorize the periodic table in few minutes. And then we will discuss about the properties like ionization energy, electron affinity, electronegativity, hydration energy, polarizing power, acidic and basic nature, oxidizing and reducing nature, and their variations in groups and periods. I will try that today's lecture will be very useful to you, and if you listen each and everything with serious mode, then you will feel that you have read 60 or 70 pages of a book. So let us start. First, you know very well that total 118 elements are there in periodic table. These 118 elements are arranged in 18 groups and 7 periods. From top to bottom there are groups. From left to right, Aman, rearrange it. From top to bottom there are groups. From left to right there are periods. Left to right periods, top to bottom groups. You know very well about it. So you know very well that there are 4 blocks of periodic table. First one is S block containing 2 groups, first and second. Then from 13th to 18th there is P block. This one is S block. I am writing here. S block में आपके 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप. क्लियर? फर्स्ट ग्रुप आपको मालूम है अल्किल मेटल्स है, सेकंड ग्रुप आपका एल्कलाइन मेटल्स है. इनको एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इनमें से किसी भी एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है. दिस इज द रीजन दैट दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. उसके बाद 13 से 18th ये है आपका पी ब्लॉक. इसको हम पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं कि इनमें से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे. एस और पी ब्लॉक को कंबाइनली दोनों ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है. एस ब्लॉक में मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी हैं, मेटल्स भी हैं. टोटल 118 एलिमेंट्स में से ज्यादा पार्ट मेटल्स का है. वैसे तो आपको मालूम ही है कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं. Our S block has metals, P block has metals, non-metals as well as metalloids. आप जानती हैं metalloids are those elements which has properties of metals as well as non-metals. Very clear? So here in P block there are 13 to 18th group. उसके बाद बात आ जाती है ये जो बीच में आपका ब्लॉक है, it is called D block. Why it is called D block? इनको हैवी एलिमेंट्स भी कहा जाता है, हैवी मेटल्स भी कहा जाता है. डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू डी ऑर्बिटल, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है. लास्ट जो आप देख रहे हैं इट इज एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक में आपकी 2 सीरीज है, आपको सबको मालूम है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स. एक्टेनॉइड्स में तो लगभग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही हैं. लैंथेनॉइड्स को भी हम हैवी मेटल्स कहते हैं. डी ब्लॉक का एक और नाम है ट्रांजिशन मेटल्स. डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स? बिकॉज जब इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनकी जो लास्ट के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इतनी क्लोज है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांजिट करते रहते हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट हम बोलते हैं. फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. रीजन
क्यों बोलते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि ये ट्रांजिशन, दो रीजन है इसको इनर ट्रांजिशन बोलने के। एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से शुरू होते हैं। देखिए पहला एलिमेंट आप ब्लॉक का ये रहा, जिसको आपने यहां भी दिखाया हुआ है और यहां भी दिखाया हुआ है, लेंथेनाइड। इसी तरह एक्टिनाइड का पहला एलिमेंट आपने यहां भी दिखाया हुआ है, यहां भी दिखा हुआ है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से शुरू होती है, एक तो इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एक इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर होता है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनको इनर ट्रांजिशन बोलने की एक और वजह है, इसके जो लास्ट के ऑर्बिटल्स हैं वो है n-2f, n-1d और ns। इनके बीच इलेक्ट्रॉन आपस में जंप कर सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत क्लोज है लास्ट के ऑर्बिटल्स की, इसलिए इनर ट्रांजिशन होने की वजह से इनका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। अब मुझे मालूम है आप बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सर ये तो हमें मालूम है, आप ना हमें फटाफट पीरियोडिक टेबल याद करा दो। ताइए आपको पीरियोडिक टेबल याद करा देते हैं। देखिए जो मेरा आइडिया है, 10 मिनट से ज्यादा आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने में नहीं लगेंगे। आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, पीरियोडिक टेबल भी याद हो जाएगी, एक एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। कीप स्माइल ऑन द फेस, जरा मजा लीजिए पीरियोडिक टेबल का, फिर प्रॉपर्टीज का मजा लेते हैं। सबसे पहला हमारा एस ब्लॉक का अल्कली मेटल्स का ग्रुप, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं बोल रहा हूं, देखिए इसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब हर एक ग्रुप को किसी ऐसे आइडिया से लिंक करेंगे, किसी कहानी से लिंक करेंगे कि आपको फटाफट याद हो जाए। जैसे मान लो हेलिना एक चुड़ैल है, डरना मत, और वो कब्र में पड़ी है और वो कब्र से फरार हो गई है, तब इसको क्या बोलेंगे? हेलिना कब्र से फरार। एक बार फिर सुनिए, हेलिना कब्र से फरार, H4 हाइड्रोजन, हेलिना, Li4 लिथियम, ना सोडियम, कब्र पोटाशियम और रुबिडियम, से सीजियम, Fr फरार, हेलिना कब्र से फरार। पहली कहानी थोड़ी डरावनी है लेकिन 1 मिनट में याद होगा। कोई भी पूछे भी एस ब्लॉक का पहला ग्रुप क्या होते हैं अल्किल मेटल्स, हेलिना कब्र से फरार। हेलिना कब्र से फरार में H4 हाइड्रोजन, Li4 लिथियम, Na4 सोडियम, K4 पोटाशियम, Rb4 रुबिडियम, CS4 सीजियम, Fr4 फ्रेंसियम। अब बच्चे कहते हैं इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखूं? एटॉमिक नंबर याद रखना बड़ा आसान है, इनमें जरा गैप देखिए क्या है। इसको मैं बोलूंगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। बच्चा कहता सर क्या बोल रहे हो? एक बार फिर सुनो, 2, 8, 8, 18, 18, 32। एक बार फिर बोल रहा हूं, 2, 8, 8, 18, 18, 32। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 में क्या ऐड करोगे? 2, 1 + 2 3, फिर क्या ऐड करोगे? 8, 11 हो गया, फिर 8 19 हो गया, फिर 18 37 हो गया, फिर 18 55 हो गया, फिर 32 87 हो गया। इसी तरह मान लो नेक्स्ट ग्रुप है, उसको याद करने का तरीका तो मैं सिखाऊंगा ही। नेक्स्ट ग्रुप में भी देखिए पहला एलिमेंट तो है नहीं, यहां से शुरू होता है नेक्स्ट ग्रुप, तो यानी आप 8 ऐड करना शुरू करेंगे, 2 ऐड करना तो छोड़ देंगे अब, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है ये ग्रुप। इसमें देखो वही टेक्निक, देखो मैं बिना एटॉमिक नंबर देखे लिख रहा हूं, +8 +8 +18 +18 +32, वही मेथड यूज किया मैंने। 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32। देखो यहां से शुरू किया ना हमने, 8 8 18 18 32, क्योंकि 2 वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां से एलिमेंट है नहीं, यहां से शुरू करेंगे। वही पैटर्न देखो यह है 8 8 18 18 32, वही है 8 8 18 18 32। यानी आप क्या क्या ऐड करते चले जाएंगे? 8 8 18 18 32। देखो बैरियम का एटॉमिक नंबर 4 था, 4 + 8 12, फिर 8 12 + 8 20, फिर 18 20 + 18 38, फिर +18 38 + 18 56, फिर +32 क्या आ गया? 88। जैसे यहां भी देखो 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87।
तो 8 8 18 18 32, देखो सबके एटॉमिक नंबर आपको याद हो गए। क्या क्या पाया? 8 8 18 18 32। एक बार फिर बोल के दिखाना, 8 8 18 18 32। एक बार फिर 8 8 18 18 32। फिनिश। आइए सेकंड ग्रुप को याद करते हैं। सेकंड ग्रुप में एलिमेंट आपने जिसको एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। वैसे तो इन पे भी बात करनी है मुझे कि इनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, इनको एल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं, सब चीजों पे बात करेंगे। पर पहले जरा याद करने पे काम कर लेते हैं। किसको कैसे याद रखें सेकंड ग्रुप को? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसके देखो दो तरीके हैं। एक तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक बार फिर देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा बीई बेरिलियम, मांगे एमजी मैग्नीशियम, कार सीए कैल्शियम, स्कूटर एसआर यानी स्ट्रोंशियम, बाप बीए बेरियम, आरए राजी रेडियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। याद हो गया सेकंड ग्रुप भी। एक बार फिर ये दोनों ही है बस एस ब्लॉक में दो ग्रुप। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं। पहला का गाना क्या बना? हेलिना कबर से फरार। दूसरे का बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या बाप राजी। रोए क्यों? राजी, आर्य हो राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दूसरा तरीका क्या है? आपने कार्ड्स में 12 का पत्ता देखा है जिसको बेगम बोलते हैं, तो यूं भी बोल सकते हैं हम, बेगम के सर 12, बेगम के सर 12। फिर क्योंकि कार्ड में जो 12 का पत्ता होता है उसको बेगम बोलते हैं, मालूम है सबको। अब आइए हम पी ब्लॉक पे बात करते हैं। एस ब्लॉक पे दो ग्रुप हो गए, फिर हम पी ब्लॉक पे बात करेंगे। अब पता लगा एक बच्चा बीच में ये कह रहा है कि सर डी ब्लॉक पे बात क्यों नहीं करेंगे? भाई डी ब्लॉक को सीरीज में करेंगे, डी ब्लॉक को भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले पी ब्लॉक को, यानी कि जिनको हमें ग्रुप्स में डिस्कस करना है, टॉप टू बॉटम डिस्कस करना है, कॉलम्स में डिस्कस करना है। अब आइए जरा 13th ग्रुप पे। बच्चे कहते हैं सेकंड के बाद 13th पे कैसे आ गए? बाकी के 10 ग्रुप डी ब्लॉक में आएंगे ना हमारे, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तब आप आगे 13th ग्रुप पे पी ब्लॉक के। ये तो बता ही दिया कि इन सारे एलिमेंट को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। बोलो किस में एंटर करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी ऑर्बिटल में, इसलिए दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो पहला, बैंगन आलू गए इन थाली, B4 बोरॉन, Al एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन आलू गए इन थाली। एक बार फिर बोल के बताइए, बैंगन आलू गए इन थाली। ठीक है, क्लियर? तो बैंगन आलू गए इन थाली क्या है? बैंगन बी बोरॉन, आलू Al एल्युमिनियम, गए Ga गैलियम, इंडियम, थाली Tl। बैंगन आलू गए इन थाली। एटॉमिक नंबर फिर देखिए आपको मालूम है इधर एटॉमिक नंबर 1 1 करके बढ़ रहा है और इधर वही सिस्टम है 8 8 18 18 32। यहां भी देखिए 5 + 8 13 आ गया ना, बोरॉन 5 और एल्युमिनियम 13। 13 + 18 31, 31 + 18 49, 49 + 32 81, 81 + 32 113। देखिए जरा पी ब्लॉक में क्या सिस्टम चलता है। पूरे पी ब्लॉक में सिस्टम चलेगा 8 18 18 32 32, 8 18 18 32 32, 8 18 18 32 32। तो आपको देखो एटॉमिक नंबर भी साथ साथ याद हो रहे हैं, मजा आ रहा है ना? एटॉमिक नंबर भी साथ साथ याद हो रहे हैं, एलिमेंट भी साथ साथ याद हो रहे हैं। आइए आते हैं 14th ग्रुप पे। 14th ग्रुप पे बात करते हैं। अब 14th ग्रुप पे बात करें तो कार्बन से शुरू होता है 14th ग्रुप, आपको मालूम है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है इसका? बड़ा सिंपल सा, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। कहे सी कार्बन, शिव SI सिलिकॉन, जी तो जर्मेनियम, सुने SN टिन, PB लेड पार्वती। कहे शिव जी सुने पार्वती। और देखो फिर वही सिस्टम एटॉमिक नंबर का, कार्बन का 6 है, इधर देखो एक एक करके बढ़ रहा है, यूं चल रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10।
और ऊपर से नीचे का सिस्टम देखो, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, 6 + 8 14, 14 + 18 32, 32 + 18 50, 50 + 32 82, 82 + 32 114। पूरे पी ब्लॉक का यही सिस्टम है। 8 18 18 32 32। एक बार फिर मेरे साथ पी ब्लॉक बोले तो 8 18 18 32 32, यानी 5 + 8 13, 13 + 18 31, 31 + 18 49, 49 + 32 81, 81 + 32 113। क्लियर है एकदम सबको? ये हो गया अपना 14th ग्रुप। अब देखो एक ही एटॉमिक नंबर को बढ़ाना है, नाइट्रोजन पे आ गई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको कैसे, 2-3 तरीके बताता हूं इसके भी। पहला, बच्चों को फिल्में ज्यादा अच्छी लगती है ना, ठीक है, और फिल्में तो अच्छी लगती है, अगर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व करें तो और अच्छे से आपको याद रहेगा। देखिए नाइट्रोजन फैमिली को कैसे याद करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। क्लियर है? मजाक में तो बोल सकते हैं ना, वैसे तो आपको मालूम है दे आर वेरी रिच। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। किसी फिल्म में तो बन सकते हैं ना, असली में तो नहीं है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। नाना एन नाइट्रोजन, पाटेकर पी फास्फोरस, ऐश्वर्या एस आर्सेनिक, सब एंटीमनी एसबी, भिखारी बीआई बिस्मथ। या इसको यूं समझ लीजिए, आपको मालूम है एग्जाम सब लोग देते हैं, पास सब लोग नहीं होते हैं, तो आप इसे बोल सकते हैं न पास सभी, न पास सभी, न पास सभी। क्लियर है? न पास सभी। क्लियर है? अब देखिए इसमें भी वही सिस्टम चलेगा क्या, 8 18 18 32 32। चेक कीजिए, 7 + 8 15 एकदम सही है, 15 + 18 33 एकदम सही है, 33 + 18 51 एकदम सही है, 51 + 32 83 एकदम सही है, 83 + 32 115 एकदम सही है। तो 8 18 18 32 32। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑक्सीजन फैमिली 16th ग्रुप। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, उससे टेपो। बच्चा कहते कुछ हम तो ज्यादातर पेपर में यही करते हैं, नहीं नकल करना गलत बात है, लेकिन याद रखने के लिए बोल सकते हैं उससे टेपो, उससे टेपो। नकल करना गलत बात क्यों है, मान लो आप आगे वाले से टेप रहे हैं पेपर में और उसी को कुछ नहीं आता तो आप भी फेल हो जाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल नहीं करना है ये उससे टेपो वाला, सिर्फ याद रखना है 16th ग्रुप उससे टेपो, 16th ग्रुप उससे टेपो। उससे टेपो में O4 ऑक्सीजन, उससे F4 सल्फर, से सेलेनियम, टेपो TE टेलेरियम, PO पोलोनियम, उससे टेपो। और एटॉमिक नंबर को आप कहेंगे सर अब हमें ही पूछ लो, आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि सबको याद हो गया है, 8 + 8 16, 16 + 18 34, 34 + 18 52, + 32 84, + 32 84। तो पी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर याद रखने हो तो क्या गैप आता है, 8 18 18 32 32, 8 18 18 32 32। एक बार फिर बोलना, 8 18 18 32 32। फिनिश। अब आ जाइए 17th ग्रुप पे, हैलोजन फैमिली। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन्हें माना जाता है। मैं प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा, पहले पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा आपको। क्लियर? देखिए ये अपना 17th ग्रुप। 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। F4 फ्लोरीन, Cl4 क्लोरीन, Br4 ब्रोमीन, I4 आयोडीन, AT4 एस्टेटिन। बोलो क्लियर है? आप देख रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट रेड कलर से दिखाए गए हैं। मालूम है क्यों रेड कलर से दिखाए गए हैं? रेड कलर लिक्विड्स के लिए दिखाया गया है इस पीरियोडिक टेबल में। तो ब्रोमीन इन हैलोजन में लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए इसको अलग से रेड कलर से दिखाया गया है। अच्छा, जो ब्लैक कलर से है इस पीरियोडिक टेबल में वो कौन है, सॉलिड्स। आयोडीन भी सॉलिड होता है, स्टेटिन भी सॉलिड होता है।
और जो आपके ब्लू कलर से हैं वो है गैसियस। फ्लोरीन क्लोरीन इसमें गैसियस है। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए बता दूं, जितने एलिमेंट ब्लू कलर के साथ दिखाए गए हैं इस पीरियोडिक टेबल में, दे आर गैसेस। जितने रेड कलर से दिखाए गए हैं, दे आर लिक्विड्स। देयर आर ओनली टू लिक्विड्स, एक ब्रोमीन एक मरकरी, रूम टेम्परेचर। और रही बात आपके सॉलिड्स की, वो ब्लैक कलर से हो गए, और ब्लू कलर से आपकी गैसेस होगी, और रेड कलर से आपके लिक्विड्स होंगे। क्लियर है? तो आइए जरा 17 ग्रुप को याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। आप में से कुछ किसान परिवार से होंगे, मैं भी बेसिकली किसान परिवार से हूं, इसलिए जरूर बोलेंगे हम फसल ब्राइट, फसल ब्राइट। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, फसल ब्राइट। क्लियर है? तो फसल ब्राइट से कौन सा ग्रुप हो गया आपका? 17th ग्रुप। और इसमें भी वही सिस्टम है, देखो 8 18 हो जाओगे शुरू, 9 + 8 17 + 18 35 + 18 53 + 32 85 + 32 117। बच्चा कहते तो जादू हो गया सर। फिर वही चल गया इसमें देखो, और यही चलेगा जब तक पी ब्लॉक चलेगा। 8 18 18 32 32। ठीक है? अब आइए आते हैं 18th ग्रुप पे। 18th ग्रुप को आप कई नाम से जानते हैं। कुछ बच्चे इसको जीरो गैसेस बोलते हैं, कुछ बच्चे इसको एरोजेंस बोलते हैं, क्योंकि एयर में मिलती हैं ये ज्यादातर गैसेस। तो कुछ इनको जीरो ग्रुप के एलिमेंट बोलते हैं, कुछ इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, कुछ इनको एरोजेंस बोलते हैं। अब इनमें एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन। अब इसको कैसे याद करेंगे? हीना और करीना, जिम में रहना, एक्सी4 जिम। हीना, हीलियम, नियोन। देखो फिटनेस के लिए जिम जरूरी है ना, आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन में लोग घर पे ही जिम कर रहे हैं। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन। हीना हीलियम नियोन और करीना आर्गन क्रिप्टॉन। जिम में रहना, जिम एक्सई जिनोन, रहना आरएन रेडॉन। हीना और करीना जिम में रहना। अब आइए एटॉमिक नंबर की बात, फिर वही शुरू हो जाओ। 8 8 बच्चा कहते जिसमें 8 दो बार क्यों आया? सिस्टम तो यह था 8 18 18 32 32, इसमें आपने 2 बार 8 लिया। भाई 2 बार 1 इसलिए प्लस किया, इसमें एक एलिमेंट फालतू है ना, हीलियम। हीलियम से शुरू कर रहे हैं ना इसमें, बाकी में तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं था, इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, इसलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं इसको। तो 8 8 वही चलेगा सिस्टम। 8 8 18 18 32 32 एकदम सही है। 8 8 18 18 32 32, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट फालतू था तो 8 ग्रुप 2 टाइम्स आ गया। अब देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 + 8 10 10 + 8 18 18 + 18 36 36 + 18 54 54 + 32 86 86 + 32 118 गया 18th ग्रुप भी। तो एस ब्लॉक भी हो गया आपका, पी ब्लॉक भी हो गया। ज्यादातर बच्चों को ये अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार फिर बता दूं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं और पी ब्लॉक में 13 to 18th ग्रुप है। 13 to 18th ग्रुप का मतलब 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है, इसमें 2 ग्रुप है। एक बार फिर मैं फास्टली रिपीट करा दूं। पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स, सिस्टम क्या है इसको याद रहेगा। हेलिना कबर से फरार। आप मेरी फिंगर देखते रहिए, मेरे ख्याल में दिख रही होंगी आपको। हेलिना कबर से फरार, बेगम के सर 12, बेगम के सर 12, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है? नेक्स्ट 13th ग्रुप, बैंगन आलू गए इन थाली। अच्छे से देख लीजिए, बैंगन आलू गए इन थाली। 14th ग्रुप, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। 15th ग्रुप, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब
दिखा रही हूं एक फिल्म में, ठीक है। या कह लीजिए नापास सभी 16th ग्रुप उससे टेक हो, एक बार फिर उससे टेक हो, 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली उससे टेक हो। 17th ग्रुप फसल ब्राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फसल ब्राइट। उसके बाद 18th ग्रुप यानी नोबल गैसेस, यानी जीरो ग्रुप, यानी एरोजन्स, ठीक है। हीना और करीना जिम में रहना, हीना और करीना जिम में रहना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। और एटॉमिक नंबर का सिस्टम तो आपको याद है ही, एस ब्लॉक का भी बता दिया आपको, पी ब्लॉक का भी बता दिया, सामने प्लस करके दिखाया हुआ है, मेरे ख्याल में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा सबको। मैं इंजीनियर अनुज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बच्चों को पूछें कि उनको बिल्कुल विजिबल है, विजिबल है, वेरी गुड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक अपना देखिए यहां से लेकर थर्ड ग्रुप से लेकर और 12th ग्रुप तक है, ये अपना डी ब्लॉक है। थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक के जो एलिमेंट है वो आपके डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के एलिमेंट की क्या विशेषता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को पढ़ते हैं हम सीरीज में लेफ्ट टू राइट, सीरीज में लेफ्ट टू राइट, क्लियर है। इस पूरे डी ब्लॉक में एक मरकरी ही है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, बाकी आप देख रहे होंगे सारे एलिमेंट हैवी मेटल्स हैं, यानी सॉलिड स्टेट में है, तभी सारे ब्लैक सिंबल से दिखाए गए, क्लियर है इतनी बात। आइए अब देखते हैं इन सीरीज को हम कैसे याद करेंगे। देखिए डी ब्लॉक में अपने पास 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ये जो पहली सीरीज है इसको क्या बोल रहे हैं हम? 3D सीरीज। इस सेकेंड सीरीज को जो यहां इट्रियम से शुरू हो रही है क्या बोल रहे हैं हम? 4D सीरीज। नेक्स्ट वन इज 5D सीरीज, नेक्स्ट वन इज 6D सीरीज। ये 4 सीरीज हमारी डी ब्लॉक में होती है। डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या बताया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो 3D सीरीज को याद रखने का तरीका क्या है? आइए एक कहानी से जोड़ते हैं। शक्तिमान सबने देखा, बड़ा फेमस है। शक्तिमान को जब भी कोई बुलाता है तो वो तुरंत आ जाता है हेल्प करने, लेकिन शक्तिमान के भाई का नाम है शक्तिमान, उसके बारे में आप नहीं जानते, आप जानेंगे, क्लियर। शक्तिमान के भाई का नाम क्या है? शक्तिमान। शक्तिमान निकम्मा है, वो किसी के बुलाने पे नहीं आता। शक्तिमान अच्छा है, वो किसी के बुलाने पे आ जाता है। अच्छा कौन है? शक्तिमान, जो सबके बुलाने पे आ जाता है। शक्तिमान उसका भाई है जो बुलाने में नहीं आता। बुलाने में नहीं आता तो क्या होगा? देखिए शक्तिमान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। आइए मैं इन एलिमेंट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया डी ब्लॉक को हम पीरियड्स में पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। तो लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज में एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर देखिए कितना आसान होता है सीरीज में याद करना। एटॉमिक नंबर इसलिए आसान है कि एक एक करके ही तो जोड़ना है आपको। लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता है। तो आप देखिए कैल्शियम का 20 आपको याद था ही, उससे आगे स्कैंडियम है 21, तो 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर लिख दीजिए सीधे, कुछ भी नहीं करना ना। 10 एलिमेंट है तो 21 से 30 में आ जाएंगे, क्लियर। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30, क्लियर। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद रखने का तरीका क्या है इस सीरीज को? देखो शक्ति वान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान।
क्योंकि शक्तिमान को बुलाते तो वो आ जाता और कुएं में से बंदे को निकाल के उसकी जान बचा लेता। मैंने आपको बताया शक्तिमान अच्छा है, शक्तिवान जो उसका भाई है वो निकम्मा है, वो बुलाने में नहीं आया, जिसकी वजह से जान बंदे की नहीं बची। तो शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। क्लियर है? तो एससी फोर शक्ति, एससी फोर शक्ति टीआई टाइटेनियम, वान वीए, करे सीआर, मना एमएन, फिर एफई, कौन सीओ, निकाले एनआई, कुआ सीयू, से जान जेडन। तो शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। ये होगी अपनी 3D सीरीज। एटॉमिक नंबर 21 से 30, वेरी सिंपल। अब बात कर लेते हैं 4D सीरीज की। 4D सीरीज में हमारे जो एलिमेंट हैं पहले वो देख लीजिए। 4D सीरीज में अपने एलिमेंट हैं इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबडेनम, टेकेंटियम। फर्स्ट आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट है ये टेकेंटियम। क्लियर है? जितने भी व्हाइट कलर से दिखाए गए एलिमेंट हैं ये सारे सिंथेटिक एलिमेंट हैं, ये मैन मेड एलिमेंट हैं। देखो जैसे ये अपना एफ ब्लॉक है, इसमें देखो ये पहले चार तो दिखाए डार्क, यानी ये तो नेचुरली मिलने वाले हैं जो आपके डार्क ब्लैक कलर से दिखा रखे हैं। लेकिन जो व्हाइट कलर से दिखाए गए एलिमेंट है सारे मैन मेड एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट है। यहां भी जो व्हाइट कलर से दिखा रखे हैं सारे मैन मेड एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट है। तो पहला सिंथेटिक एलिमेंट जो बना था पीरियोडिक टेबल का, दैट वाज टेकेंटियम। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आ चुका है। विच इज द फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट फॉर्म्ड। नीचे चार ऑप्शन थे, टेकेंटियम बच्चे टिक करके आए जिनको पता था वो। क्लियर है? तो टेकेंटियम इज फर्स्ट सिंथेटिक मेड एलिमेंट। वेरी क्लियर? तो 4D सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से बताए मैंने आपको। किससे शुरू होती है 4D सीरीज? इट्रियम से। खत्म किस पे होती है? कैडमियम पे। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबडेनम, टेकेंटियम, रुबेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम। अब बात आती है इसको याद करने का तरीका क्या है। सब बच्चे पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं 4D सीरीज को याद करने का तरीका। यूर जेब्रा एंड मंकी ट्रेवलिंग rudely in rhythm like a passenger from Agra to Canada। एक बार फिर, यूर यानी वाई यूट्रियम, जेब्रा यानी जेडार जिरकोनियम, एंड एनबी, एंड मोंकी एमओ, ट्रेवलिंग के लिए टीसी आ गया, र्यूडली आरयू आ गया, इन रिदम पैसेंजर पीडी आ गया। उसके बाद फ्रॉम आगरा टू कैनेडा, यूर जेब्रा एंड मोंकी, यूर जेब्रा एंड मोंकी, ट्रेवलिंग र्यूडली इन रिदम लाइक ए पैसेंजर फ्रॉम आगरा टू कैनेडा। नया रूट बना दिया था आपने आज, आगरा टू कैनेडा। क्लियर है? आगरा टू कैनेडा। एक बार फिर 4D सीरीज फिर याद करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है 4D सीरीज को याद करना, लेकिन रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। वाई फॉर यूर, जेड आर फॉर जेब्रा, यूर जेब्रा एंड का ए नहीं बोलना, एंड यानी एन भी बोलना आपको। मोंकी एमओ, ट्रेवलिंग टीसी। कैसे? ट्रेवलिंग र्यूडली आर यू, इन रिदम like a passenger, moving from आगरा टू कैनेडा। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया अपना 4D सीरीज का सिस्टम। अब आ जाते हैं 5D सीरीज पे। 5D सीरीज की अगर हम बात करें, ये थर्ड सीरीज है डी ब्लॉक की। इसमें एलिमेंट है, हाफनियम से शुरू करेंगे हम क्योंकि लेंथेनम तो एफ ब्लॉक में चला जाता है। ये देखिए ये चला गया एफ ब्लॉक में। क्लियर है? तो हम हाफनियम से शुरू करेंगे इसको। अच्छा, एटॉमिक नंबर की कोई टेंशन क्यों नहीं है। 4D सीरीज में भी एटॉमिक नंबर 39 से शुरू है, 50 तक है, यानी 1 जोड़ते चले जाना है। टॉप टू बॉटम देखना चाहो तो 21 + 18 39।
21 प्लस 18 39। क्लियर है? तो 21 प्लस 18 39, वैसे ही 39 प्लस 18 57, फिर 57 प्लस 32 89, यानी गैप वही है आपका 18 32। स्कैंडियम में 18 जोड़ा, इट्रियम में भी 18 जोड़ा, और फिर लेंथेनम में भी 32 जोड़ा। तो 18 फिर 18 में 18 फिर 32, तो 18 18 32 सब में यही चलेगा। 18 18 32 आप चेक कर सकते हैं। 18 18 32 18 18 32 बताऊंगा आपको सारा सिस्टम, चिंता मत कीजिए। देखो, स्कैंडियम से इट्रियम तक क्या जुड़ा? 18। फिर इट्रियम से लेंथेनम तक क्या जुड़ा? 18। फिर लेंथेनम से एक्टिनियम तक क्या जुड़ा? 32। तो 21 प्लस 18 39, 39 प्लस 18 57, 57 प्लस 32 89। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डी ब्लॉक को आप लेफ्ट टू राइट याद करें तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि एक एक का ही गैप है ना। अब स्कैंडियम से जिंक तक देखो, 1 प्लस 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 1 1 जोड़ते चलेंगे। इट्रियम से कैडमियम तक देखो, 1 1 जोड़ते चलेंगे, 39 प्लस 1 1 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट एक एक करके बढ़ता है, कुछ करना ही नहीं आपको, एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाइए। रही बात 4D सीरीज को याद करने का तरीका, एक बार फिर बता दूं क्या है। यूर जेब्रा एंड मंकी ट्रेवलिंग rudely in rhythm like a passenger moving from आगरा टू कनाडा। क्लियर? ये होगी हमारी 4D सीरीज। अब आइए 5D सीरीज पे। 5D सीरीज में एलिमेंट है अपने हाफनियम। ये मैं क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि ये देखो एफ ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगा, इसलिए हाफनियम से शुरू कर रहा हूं। हाफनियम, टांटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है? क्लियर? थोड़ा सा उधर से एक बार फिर, हाफनियम, टांटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। अब इस 5D सीरीज को याद रखने का तरीका देखिए क्या है। पहले लिख लीजिए, फिर अप्लाई करके दिखा रहा हूं सब बच्चों को। हाई टेंशन वायर ऑन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और हाईवे। हाई टेंशन वायर, वायर में दोनों आएंगे डब्ल्यू और आर ई। हाई टेंशन वायर ऑन, ऑस्मियम के लिए बोला। इंडस्ट्रियल प्लॉट, पीटी, इंडस्ट्रियल प्लॉट और हाईवे। एक बार फिर, हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन वायर ऑन इंडस्ट्रियल प्लॉट और हाईवे। हाई टेंशन वायर ऑन इंडस्ट्रियल प्लॉट और हाईवे, यानी हाफनियम, टांटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। हाई टेंशन वायर, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी को कैसे याद करेंगे? हाई टेंशन वायर, वायर में दोनों आ गए। हाई टेंशन वायर ऑन इंडस्ट्रियल प्लॉट और हाईवे। हाई टेंशन वायर ऑन इंडस्ट्रियल प्लॉट और हाईवे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और एक ही एलिमेंट है इसमें जो लिक्विड आपका मरकरी। अब आ जाती है अपनी लास्ट सीरीज 6D सीरीज, जो कि शुरू तो होती है एक्टिनियम से, पर एक्टिनियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। देखो यहां आ गया, चेक करो साथ साथ, इसको हम एफ ब्लॉक में काउंट करेंगे। तो यहां से शुरू करेंगे हम। एलिमेंट देख लीजिए पहले, बड़ा आसान तरीका बताऊंगा इसको याद रखने का। बड़ी डिफिकल्ट है वैसे, ये याद होती नहीं बच्चों को, पर इतना आसान तरीका बताऊंगा कि 1 मिनट में याद हो जाएगी। पहले एलिमेंट देख लीजिए आपके इस 6D सीरीज के कौन से। रुद्रफोर्डियम, ड्यूबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हैशियम, मैनिटेरियम, ड्रामेस्टिडियम, रोमटेंजेनियम, कॉपरनिकम, निहोनियम, फिलेरियम, मोस्कोवियम, लिवोरियम, टेनिसाइन और ऑगेंसन।
तो बच्चे को लगता है कि जी ये तो बड़ा मुश्किल है याद करना, इसको कैसे याद करें, इसका तरीका क्या है। आइए मैं आपको बताता हूं इसका तरीका क्या है। देखिए, आर डी शर्मा का सबने नाम सुना है? आर डी शर्मा बेस्ट बुक हैव मैथ्स डिफिकल्ट रेंज क्वेश्चंस। क्योंकि ये लेटेस्ट एलिमेंट रिसर्च हुए हैं, यहां तक मैं करा रहा हूं, ये तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं ना, ये तो लेटेस्ट सर्च हुए हैं आपके एलिमेंट्स, और इनको वैसे भी आप डी ब्लॉक में थोड़ी ना काउंट कर रहे हैं, डी ब्लॉक तो आपका यहां तक है, तो आपकी जो सीरीज है वो यहां तक गिनूंगा ना मैं, ये तो आपकी 13th ग्रुप में आ गई, तो ये एलिमेंट यहां से यहां तक मुझे आपको याद कराने हैं। नजर आ रहा है ना? क्लियर? यहां तक है ना आपका ये डी ब्लॉक, ध्यान दे रहे हैं सब बच्चे? तो मुझे यहां तक आपको इसे याद कराना है, अब याद करा देता हूं। देखो, आर डी शर्मा बुक, और कैसी बुक है आर डी शर्मा? सबने पढ़ी है, बढ़िया बुक है। आर डी शर्मा बुक है मैथ्स डिफिकल्ट रेंज क्वेश्चंस। एक बार फिर, आर डी शर्मा बुक है मैथ्स एमटी मैथ्स डिफिकल्ट रेंज आरजी क्वेश्चन सीएम। एक बार फिर, कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके 6D सीरीज में? रुद्रफेडियम, ड्यूबनियम, सिबोर्गियम, बोहरियम, हैसियम, मैनिटेरियम, डेमेस्टेडियम, रोंटेजेनियम, कॉपरनिसियम। हालांकि मैं इन एलिमेंट्स पे ये बात भी कर सकता हूं कि इन एलिमेंट के जो जो नाम रखे गए क्यों रखे गए। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, कोई नाम तो इनमें साइंटिस्ट के बेस पे है जिसने इसे सर्च किया, कोई नाम उस लेबोरेटरी के बेस पे है जिस लेबोरेटरी में सर्च किया, कोई उस सिटी के बेस पे है जिस सिटी में सर्च किया। तो दे आर डिफरेंट सोर्सेज इनके नाम रखने के। और आप देख ही रहे हैं अपनी ये जो 6D सीरीज है, इसमें तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो नेचुरल मिलने वाला एलिमेंट हो। दीज ऑल आर आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट फॉर्म बाई आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बड़ा मन करता है बताने का, लेकिन टीचर की ये मजबूरी होती है कि जो टॉपिक जिस समय चल रहा हो उसी में हमें बात डिस्कस करनी है। किसी नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं न्यूक्लियर रेडियो केमिस्ट्री लूंगा तो आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है, कैसे बने सिंथेटिक एलिमेंट्स। बड़ा मन करता है चर्चा करने का, लेकिन आज क्योंकि मेंशन है कि टॉपिक सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का है, तो लहर नमकीन खाने से तो काम चलेगा नहीं कि कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। वी हैव टू रिमेन इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉपिक, इन द रेंज ऑफ द टॉपिक। तो एक बार फिर, क्योंकि डी ब्लॉक थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए याद करना, तो डी ब्लॉक को एक बार फिर रिपीट करा रहा हूं मैं। आइए एक बार फिर बात करते हैं। 4 सीरीज हैं डी ब्लॉक की आपकी, 3D, 4D, 5D, 6D। आपने इनके सबके गाने तो लिख ही लिए हैं, यानी रिथमेटिक सिस्टम लिख ही लिया है। क्या 3D सीरीज का क्या था भाई? शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। याद है ना, 2 भाई हैं, एक शक्तिमान जो सबके बुलाने पे आता है, सबके बुलाने पे आता है। शक्तिमान के निकम्मे भाई का नाम क्या है? शक्तिवान, वो बुलाने में नहीं आता, इसीलिए देखो बंदे की जान चली गई। तो शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, ये तो हुई 3D सीरीज। एटॉमिक नंबर 21 से 30, एक एक करके बढ़ाना आपको। उसका अपनी 4D सीरीज। 4D सीरीज का आपको क्या बताया था? यूर जेब्रा एंड मंकी ट्रेवलिंग rudely in rhythm like a passenger moving from Agra to Canada. याद है? Your zebra and monkey, your zebra and a monkey traveling rudely in rhythm like a passenger moving from Agra to Canada. Agra AG for silver, Canada CD for cadmium. उसके बाद 5D सीरीज अपनी क्या थी? हाफनियम से शुरू थी 5D सीरीज। इसका हमने क्या गाना बनाया या क्या रिदम बनाया? हाई टेंशन वायर। हाई टेंशन वायर, वायर में W और I दोनों आ गए। हाई टेंशन वायर
ट्रांसमिशन वायर ऑन इंडस्ट्रियल प्लॉट और हाईवे। अब आगे अपनी 6D सीरीज। अच्छा, 5D सीरीज में एलिमेंट 72 से 80 एक एक करके आपको एटॉमिक नंबर बढ़ाना है। ये एलिमेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये चला गया हमारा एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक के लिए भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एफ ब्लॉक के लिए भी कराऊंगा। अब ये लास्ट सीरीज जो हमारी है उसको कैसे याद करेंगे? 6D सीरीज डी ब्लॉक की। R.D. शर्मा बुक, R.D. शर्मा बुक है मैथ्स डिफिकल्ट रेंज क्वेश्चंस। R.D. शर्मा बुक है मैथ्स डिफिकल्ट रेंज क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये होगी आपकी डी ब्लॉक की 4 सीरीज, 3D, 4D, 5D, 6D। एटॉमिक नंबर देखिए कितना आसान है याद करना। 104 से सीधा 112 एक एक करके आपको बढ़ाना। तो 3D सीरीज की शुरुआत स्कैंडियम से, 4D सीरीज की इट्रियम से, 5D सीरीज का पहला एलिमेंट एफ ब्लॉक में है तो 72 से शुरुआत कर सकते हो और 72 से 80। और 6D सीरीज का पहला एलिमेंट एक्टिनियम एफ ब्लॉक में। ये लैंथेनम और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो पहला एलिमेंट है ये लैंथेनम और एक्टिनियम, इसको यहां क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करता है, इसलिए हम इसको डी ब्लॉक में नहीं गिन सकते, इसलिए हमें इसको एफ ब्लॉक में काउंट करना पड़ता है। क्योंकि डी ब्लॉक में प्रेजेंट एलिमेंट के लिए बड़ी सीधी कंडीशन है, ओनली दोज एलिमेंट कैन कंसीडर इन डी ब्लॉक whose last electron during writing their electronic configuration enter into d orbital, then only they claim as d block element. If their last electron enter into f orbital, then that will include in f block element, as in this transition elements lanthanide and actinide. No doubt that lanthanum and actinium are shown in d block, but actually they are f block elements because their last electron enter into f orbital. Is it clear to everybody? Okay, now come to f block. देखिए f block के जो एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड है हमारे हैवी मेटल्स, लैंथेनाइड क्या है हमारे हैवी मेटल्स, और एक्टिनाइड क्या है हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिनाइड क्या है हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो लैंथेनाइड आपके सामने है ये वाले, एक्टिनाइड है ये वाले। इन्हें रेगुलर पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी गई, आज तक इसको ड्रॉबैक बताया जाता है पीरियोडिक टेबल का। वैसे तो कई सारे ड्रॉबैक हैं, मैं डिस्कस कर सकता हूं, पर मैं ड्रॉबैक कम डिस्कस इसलिए करता हूं कि इतनी बढ़िया पीरियोडिक टेबल बनी है, कमियां डिस्कस ना की जाए, फायदा उठाया जाए पीरियोडिक टेबल का। छोटी छोटी कमियां हैं, कोई बड़ी कमियां नहीं है, और वो कमियां गिनवाने का क्या फायदा जिसे दूर ना किया जा सके, इसको तो अब तक दूर ही नहीं किया जा सका। कमियां क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन है, जो लोग कहते हैं भी ये तो गैसियस एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी अल्किल मेटल से मिलती नहीं, फिर इसको अल्किल मेटल में क्यों रख रखा है। दूसरी कमी लोग पीरियोडिक टेबल की ये निकालते हैं कि जो एफ ब्लॉक है वो मेन पीरियोडिक टेबल का पार्ट क्यों नहीं है। अब आप ही देखिए, इसको मेन पीरियोडिक टेबल में अगर जगह देंगे तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा पीरियोडिक टेबल का। तो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि पंगे लेके नहीं देखे होंगे, लोगों ने चेंज करके देखे, पर इससे बेटर नहीं बनी तो इसी में वापस आ गए। जहां तक लोगों ने जो इस पीरियोडिक टेबल में चेंज किए, उन्होंने चेंज के बाद मालूम है क्या बोला है? उन्होंने चेंज के बाद बोला है कि जो मैंने चेंज किया है पर पढ़ना आप यही, क्योंकि दिस इज बेटर। क्लियर है? कोई फायदा नहीं है इसमें कोई चेंज करने का। तो ये बेस्ट पीरियोडिक टेबल है अब तक की। आइए अब जरा एफ ब्लॉक पे बात करते हैं। एफ ब्लॉक के जो सीरीज है इसको बोलते हैं अपन 4F सीरीज, इसको बोलते हैं अपन 5F सीरीज। 4F सीरीज इज ऑफ लैंथेनॉइड्स, 5F सीरीज इज ऑफ एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? 4F सीरीज किसकी है? लैंथेनॉइड्स की। 5F सीरीज किसकी है? एक्टिनॉइड्स की। लैंथेनाइड आर मेड ऑफ हैवी मेटल्स, एक्टिनाइड्स आर मेड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। लेकिन लैंथेनाइड में एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कंपटीशन में, ध्यान दीजिएगा, और वो क्वेश्चन ये है कि लैंथेनाइड का कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, जबकि लैंथेनाइड तो हैवी मेटल्स के बने हुए हैं, इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। एक्टिनाइड सारा ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है, 2-3 एलिमेंट को छोड़ के। तो लैंथेनाइड में ये जो एलिमेंट है आपका प्रोमीथियम, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट भी है। बोलो आर्टिफिशियली मेड क्यों है? ये दिख रहा है ना आपको,
किससे रिप्रेजेंट किया है? व्हाइट लाइन से, व्हाइट सिंबल से, ब्लैक से नहीं किया। जितने भी ये व्हाइट से रिप्रेजेंट है ये सारे ही आर्टिफिशियली मेड सिंथेटिक एलिमेंट है। आइए इनको याद करने का तरीका, आइए इनको याद करने का तरीका बनाते हैं अपन। कौन कौन से एलिमेंट है 4F सीरीज में? लैंथेनम, सीरियम, प्रिजोडियम, नियोडियम, प्रोमीडियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोर्सियम, होलियम, एर्बियम, थुलियम, इट्रिवियम, ल्यूटेरियम। क्लियर है? ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ डिफिकल्ट नेम होते हैं कई बार साउथ इंडियंस के, कि कोई डिफिकल्ट नेम है, या फॉरेन कंट्री के किसी बंदे के बड़े डिफिकल्ट से नेम लग रहे हैं आपको, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है। याद करने का तरीका आपको बताऊंगा, बड़ा आसान लगेगा आपको। तो ये याद रखना कि आपकी 4F सीरीज लेंथेनाइड लैंथेनम से शुरू होती है, ल्यूटेटियम पे खत्म होती है। ये भी सारे एलिमेंट्स के बारे में याद रखना है, किससे शुरू किस पे खत्म। क्लियर? ये फिल्मी गाना तो है नहीं कि आप ये बोलेंगे कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। क्लियर? यहां तो अलग नाम से शुरू और अलग नाम पे खत्म, लैंथेनम पे शुरू और ल्यूटेटियम पे खत्म। तो आइए कैसे याद रखेंगे इसको, पहले नीचे वाले का बताता हूं आपको, 5F सीरीज का गाना, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए लास्ट में बताऊंगा। चलिए सीरियल वाइज ही बताते हैं, पहले 4F सीरीज पे ही आते हैं। 4F सीरीज का गाना क्या बनेगा देखिए, सुनना ध्यान से, पहले लिख लीजिए फिर अप्लाई करके दिखाता हूं। लेडीज कांट पुट, लेडीज कांट पुट इन पर्स, लेडीज कांट पुट इन पर्स, और इसको एज इट इज नाम ही याद रख लीजिए, नियोडियम, यानी ये मेटल है जिसको लेडीज अपने पर्स में नहीं रख पाती। प्रॉपरली इन स्लोप मशीन एवरी गर्ल ट्राई डेली हुएवर एवरी टाइम यू लुक। एक बार फिर क्या बोला? लेडीज कांट पुट ND neodymium properly in slope machine. Every girl try daily whoever every time you look. थोड़ा अजीब सा बना है ना? अरे बन तो गया, वैसे याद रखना। देखिए ना कितना मुश्किल है, एक बार फिर कर लेते हैं ना, जो थोड़ा सा अजीब हो। देखो सबका इतना बढ़िया सिस्टम बना, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट बना, डिफिकल्ट है तो दोबारा कर लेते हैं ना, याद हो जाएगा। एक बार फिर, लेडीज कांट पुट नियोडियम प्रॉपरली इन स्लोप मशीन, एवरी गर्ल tries daily whoever time you look. क्लियर है? TM for time, Y for you, LU for look. क्लियर है? ये होगी 4F सीरीज। क्लियर है? अब आ जाइए 5F सीरीज में, एक्ट्राइड सीरीज। एक्ट्राइड सीरीज को याद रखना काफी आसान है। ये तो एक्टिनियम हो गया, इसको तो आप यूं ही याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू कर देंगे हम इससे। एक्टिनियम तो आपको याद हो ही गया, एक्टिनियम से तो शुरू ही हो रही है सीरीज। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। का पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अमेरिकन came back carefully, easily from moon, nobody left. एक बार फिर देखिए एलिमेंट क्या क्या है, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एनर्सियम, सीरियम, बैटेलियम, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया में बना होगा, कैलिफोर्नियम, आइंस्टेनियम, फेर्मियम, मेंडेलिनियम, नोबिलियम,
लॉरेंशियम। तो एक्टिनियम से शुरू, लॉरेंशियम पे खत्म। एक्टिनियम तो आपको याद हो ही गया, यहां से मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखो। द पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज पेपर पब्लिश्ड अमेरिकन कम बैक एक बार फिर, द पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज पेपर अमेरिकन कम बैक केयरफुली easily from moon nobody left back। एक बार फिर, द साथ देखिए पीरियोडिक टेबल पे, द पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अमेरिकन केम बैक केयरफुली easily from moon nobody left। एक बार फिर, द पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अमेरिकन कम बैक केयरफुली easily from moon nobody left। बोलो बात समझ में आ गई? तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद होगी। अब पूरी पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए। इनको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को एल्केलाइन मेटल्स। 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली, 14th ग्रुप कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, 15th ग्रुप को प्लिकोगन्स भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, एनडीए में, ओलंपियाड में, जेई मेंस में, नीट में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि विच ग्रुप इज कॉल्ड प्लिकोनाइड्स और प्लिकोगन्स। प्लिकोनाइड्स और प्लिकोगन्स। तो 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्लिकोगन्स और प्लिकोनाइड्स because their compounds are suffocating in nature। जैसे फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं सफोकेटिंग नेचर के हैं, तो इन एलिमेंट्स के लगभग के ऑक्साइड सफोकेटिंग नेचर के हैं। आर्सेनिक को भी पॉइजन माना जाता है, तो सफोकेटिंग होने की वजह से इन्हें प्लिकोगन्स या प्लिकोनाइड्स भी बोलते हैं। इसी तरह एलिमेंट ऑफ विच फैमिली या एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर कॉल्ड चाल्कोगन्स। 16th ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं चाल्कोगन्स। व्हाट डू यू मीन बाय चाल्कोगन्स? चाल्कोगन्स आर ओर फॉर्मिंग। चाल्कोगन्स उनको कहते हैं जो ओर बनाते हैं। अब ज्यादातर एलिमेंट के ओर या तो ऑक्साइड होते हैं या सल्फाइड होते हैं, और ऑक्सीजन और सल्फर दोनों 16th ग्रुप में प्रेजेंट है। तो इनको चाल्कोगन्स क्यों बोलते हैं? दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट बिकॉज दे आर रिएक्टिव। They are found either in the form of oxides or in the form of sulfides. So generally they react with oxygen or sulfur. So they are found in the form of oxides and sulfides. This is the reason that the 16th group elements are called chalcogens. Clear है एकदम? उसके बाद हेलोजेंस आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 17th ग्रुप। उसके बाद 18th ग्रुप है आपका नोबल गैसेस का, रेयर गैसेस का। तो ये थी पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन। बताने को तो बहुत कुछ है इस पे, अब प्रॉपर्टीज में भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि लगातार लाइव लेक्चर देखते समय आप बच्चे कहीं ज्यादा हेक्टिक ना हो जाए आपके लिए सिस्टम। तो मुझे लगता है कि हमें एक लेक्चर और पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पे लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज पे हम अलग से बात करेंगे। आज मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करा दी, आपको एटॉमिक नंबर बता दिया कैसे याद रखना है। जैसे मान लो हम एफ ब्लॉक की बात करें तो लैंथेनम 57 से शुरू है ना, 1 ऐड करते जाइए बस। लैंथेनम से ल्यूटेटियम 57 से 71।
इसी तरह एक्टिनियम में भी 1 ऐड करते जाइए, 89 से शुरू 103 पे खत्म। तो आइए एक बार सारे ग्रुप्स का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट देखें। अल्कली मेटल्स वैसे तो लिथियम से काउंट की जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, आपको मालूम है गैसियस प्रॉपर्टी है उसकी। तो पहला एलिमेंट आप कह सकते हैं लिथियम, लास्ट कह सकते हैं फ्रेंसियम। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम टू रेडियम, थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम टू एक्टिनियम, फोर्थ ग्रुप में टाइटेनियम टू रुद्रफोडियम, फिफ्थ ग्रुप में वेनेडियम टू ड्यूबेनियम, सिक्स्थ ग्रुप में क्रोमियम टू सिबोर्जियम, सेवंथ ग्रुप में मैंगनीज टू बोरियम, एट्थ ग्रुप में आयरन Fe टू हैसियम, नाइन्थ ग्रुप में कोबाल्ट टू मिटेलेरियम, 10th ग्रुप में निकल टू ड्रामेसिटिडियम, उसके बाद 11th ग्रुप में कॉपर टू रोमटेंजिनियम, उसके बाद आपका 12th ग्रुप में जिंक टू कॉपरेनेशियम। साथ के साथ आपको यह भी बता दूं कि इस डी ब्लॉक में जिंक कैडमियम मरकरी की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है बाकी डी ब्लॉक के एलिमेंट से। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी ने कसम खा रखी है कि हम बस वही प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे जो हमारे ब्लॉक के एलिमेंट दिखाएंगे। जैसे बाकी सारे हैवी मेटल्स हैं, ये लाइटर मेटल है, बाकी सारे सॉलिड्स हैं, ये आसानी से कट हो जाते हैं। मरकरी तो बिल्कुल ही गया गुजरा है लिक्विड स्टेट में, क्लियर है। तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं मिलती बाकियों से। जैसे बाकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम हमारा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसी तरह बाकी एलिमेंट भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये बेचारे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते। ठीक है, इन बाकियों में मेटालिक बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इनमें मेटालिक बॉन्डिंग वीक है। मतलब जो जो बाकी की प्रॉपर्टी है ना, इनमें सारी अलग है। बाकी कलर शो करते हैं, ये कलर नहीं शो करते। इनके रीजन में बात हो सकती है, जिस दिन प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि अलग प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं। मोटा सा हिंट आपको दे दूं, बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिंक के लास्ट में आता है 3d10 4s2, कैडमियम के लास्ट में आता है 4d10 5s2, यानी जिंक कैडमियम मरकरी के लास्ट में फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। और जब एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, ना ये पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, ना ये कलर शो कर सकते हैं, ना इनकी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती, क्योंकि तीनों के लिए ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जिंक कैडमियम मरकरी हैज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so they have very weak metallic bonding, they do not show magnetic property, they do not show color even, because color is shown when electron transit from one orbit to other to gain after gaining energy, and when they come back to the ground state they release energy in the form of color। पर जिंक कैडमियम मरकरी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो कलर शो नहीं कर सकते। हमने कहा क्या हुआ, वही कहता जी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हमने कहा बाकी सब तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, बाकी सबके एमपीबीपी तो बड़े हाई हैं, तुमने नाक कटवा दी डी ब्लॉक की तीनों एलिमेंट में, तुम्हारे एमपीबीपी बड़े लो हैं। जिंक कैडमियम मरकरी कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, हमारे एमपीबीपी लो इसलिए है कि हम मेटालिक बॉन्डिंग शो ही नहीं कर सकते, अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो इनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से अलग है। अब 13th ग्रुप हमारा जो है बोरोन से शुरू है, थैलियम पे खत्म है। अगर हम यहां तक लें तो कह सकते हैं नियोनियम पे खत्म है। कार्बन से शुरू है 14th ग्रुप, और वैसे तो लेड पे खत्म है, लेकिन अगर यहां तक लें तो थैलोरियम, क्योंकि आर्टिफिशियली सिंथेटिक एलिमेंट है, इसलिए आप इन्हें कंसीडर करके रखें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं करना चाहे तो आपको नाइट्रोजन टू बिस्मथ तो एकदम क्लियर होना ही चाहिए। 16th ग्रुप में ऑक्सीजन से शुरू, अगर नेचुरल एलिमेंट की बात करें तो पोलोनियम पे खत्म, और अगर इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल सिंथेटिक एलिमेंट की बात करें तो लिब्रोमोनियम पे खत्म। इसी तरह फ्लोरीन से शुरू एस्टेटिन पे खत्म, इसी तरह हीलियम से शुरू रेडॉन पे खत्म, और अगर आप आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं तो यहां तक आप इसे ले सकते। वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी? तो बच्चों ये था पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। मन तो बहुत कर रहा है कि मैं आपसे प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करूं, मन तो बहुत कर रहा है कि मैं आपसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करूं, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट सेशन लूंगा, उसमें सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, acidic nature of oxide, basic nature of oxide, their variation from left to right, their variation from top to bottom, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अभी कुछ बच्चों के शायद क्वेश्चंस हैं, तो अनुज गोयल सर, महिपाल शर्मा सर, मैं कहूंगा एक बार कि जो जो बच्चों के क्वेश्चन है प्लीज। मानसी साहू पूछ रही है, why not we learn deeper
Morium and tennessine. Why don't we learn liver, morium and tennessine? देखिए इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये आपके लेटेस्ट सर्च एलिमेंट है। Manaswini Sahu. मनस्वी साहू, आप अलग से भी व्हाट्सएप पे मैं फोन नंबर छोड़ूंगा, आप उस पर ये चीजें पूछ सकते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ब्रीफ में आपको बताऊं कि लेटेस्ट डिस्कवर हुए एलिमेंट है तो इसलिए वो रिदम में शामिल नहीं किए गए इस पीरियोडिक टेबल में। Can 119 element exist? 119 एलिमेंट देखिए अगर एग्जिस्ट करेगा, अभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहां आएगा आपके अल्कली मेटल्स में, इस जगह पूछा जाता है कि अगर 119 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट डिस्कवर हो तो उसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक क्या होगा। देखिए ग्रुप क्या होगा उसका, फर्स्ट। पीरियड क्या होगा, 8, जो अभी पीरियोडिक टेबल में डाला ही नहीं गया 8 पीरियड, 8 पीरियड डालना पड़ेगा 119 एटॉमिक नंबर के लिए। तो ग्रुप रहेगा फर्स्ट और आपका पीरियड रहेगा 8 और ब्लॉक रहेगा इसका S। आपको मालूम है एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप ग्रुप पीरियड ब्लॉक बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा इस पे, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताना, सेकंड में बता पाओगे ग्रुप पीरियड ब्लॉक, उसकी टेक्निक बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल जो बच्चे का क्वेश्चन था, क्या नाम था उस बच्चे का? Manaswini Sahu. मनस्वी साहू का क्वेश्चन था कि 119 एटॉमिक नंबर का अगर एलिमेंट हम लें तो क्या ये अभी एग्जिस्ट करता है। जवाब है अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करेगा तो कहां एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा तो फर्स्ट ग्रुप में उसकी बारी आएगी क्योंकि ये 118 पे आपका 18th ग्रुप खत्म हो गया है, 119 आपका यहां से शुरू होगा, तो फर्स्ट ग्रुप का ये मेंबर होगा, 8th इसका पीरियड होगा और ब्लॉक इसका एस होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट में कंसिडर होगा। Next question, Ranjana Saini. Why fourth period is called third series? वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा रंजना ने। रंजना सैनी का क्वेश्चन है, आई थिंक मेरी स्टूडेंट है ये। तो इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मेरे रेगुलर बैच की स्टूडेंट भी है ये, बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है। तो इसने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन उसने पूछा कि क्यों Fourth period फोर्थ पीरियड is called third series. 3D सीरीज, फोर्थ पीरियड को 3D सीरीज क्यों कहते हैं, ये इस बच्चे का क्वेश्चन है। देखिए ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये आपका सेकंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, ये पीरियड फोर्थ है और बोल इसको 3D सीरीज रहे हैं, तो बच्चे को तो बुरा लगेगा क्योंकि देखो ये फोर्थ लिखा हुआ है तो ये फोर्थ पीरियड है, फिर उसको 3D सीरीज बोलने का क्या मतलब है। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, n-1 डी और ns, यानी s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप d को देते हैं। किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखिए, जैसे स्कैंडियम की लिखते हैं अपन, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को मैं खाली छोड़ रहा हूं, 4s में इलेक्ट्रॉन भर दिए 20, ऐसे भरते हैं ना। 3d को खाली क्यों छोड़ते हैं, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन फिर 3d में आएगा। अब 4s के बाद 3d को क्यों भर रहे हैं, सबको याद होगा n+l रूल क्या कहता है, जिसका n+l कम है उसकी एनर्जी कम है उसे पहले भरा जाएगा, जिसका n+l ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है उसे बाद में भरा जाएगा। 3d का n+l क्या आएगा 3 + 2 5, 4s का n+l क्या आएगा 4 + 0 4, तो इसका n+l ज्यादा है, ये बाद में भरा जाएगा, तो ये दे दिया आपने इलेक्ट्रॉन डी को। तो देखो थर्ड आप इसे क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल, तो चाहे फोर्थ पीरियड हो पर लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में एंटर होता है, इसीलिए इसको 3D सीरीज बोलते हैं। इसी तरह से चाहे फिफ्थ पीरियड हो पर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करता है फोर्थ शेल में, इसीलिए इसको 4D सीरीज बोलते हैं। इसी तरह चाहे सिक्स ग्रुप हो पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर करेगा, इसलिए इसको 5D सीरीज बोलेंगे। चाहे सेवंथ पीरियड हो पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में एंटर करेगा, इसीलिए इसको 6D सीरीज बोलेंगे। इसलिए जो पीरियड का नंबर है सीरीज का नंबर उससे कम है। फोर्थ पीरियड 3D सीरीज, 5th पीरियड 4D सीरीज, 6th पीरियड 5D सीरीज और 7th पीरियड 6D सीरीज। Which element has the highest number of valencies?
देखिए वैलेंसी तो वैसे भी एक आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया आज की डेट में, क्योंकि वैलेंसी विश्वसनीय नहीं थी, तभी वैलेंसी की जगह नई टर्म दी गई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं सारे बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि वो वैलेंसी की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े। हालांकि कुछ चीजें 9th-10th के जो बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं फेसबुक से, उनको ये कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि +1 +2 के बच्चों को तो ये चीजें मालूम है। 9th-10th के बच्चे तो थोड़े अलग ढंग से कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, इसलिए उनको कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। तो मेरा प्रयास है कि सबको इंक्लूड करके चलूं, पर कुछ लिमिटेशन है 9th-10th के बच्चों के सिलेबस की, तो वो वहीं तक चीजें समझ पाए होंगे। प्रयास करें, वो ध्यान से सुने। +1 +2 के बच्चों को देखिए एक चीज क्लियर होगी। अभी जो बात पूछी थी कि वैलेंसी, तो वैलेंसी के बारे में बता रहा हूं। वैलेंसी रिलायबल टर्म नहीं है, इसीलिए वैलेंसी की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट ली गई है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान से पढ़े, वो आपको क्लियरिटी देगी। वैलेंसी थोड़ा कंफ्यूज करती है आपको, क्योंकि वैलेंसी वैसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल के बराबर होती है, लेकिन हैलोजेंस की वैलेंसी 1 लेते हैं, जबकि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है। हो गए कंफ्यूज? तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करें, वैलेंसी की बजाय आप ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़े। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं क्यों पढ़े। वैलेंसी की डेफिनेशन तो ये कहती है दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो जब अल्कली मेटल पे वैलेंसी की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1 है। अल्कलाइन मेटल की वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2 है। बड़ा अच्छा लग रहा है। कर्टिन ग्रुप की वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 3 है। अब भी अच्छा लग रहा है। पर एक बार हैलोजन फैमिली को या नाइट्रोजन फैमिली को देखिए। हैलोजन फैमिली की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, पर वैलेंसी 1 है। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, पर वैलेंसी 2 है। अब वैलेंसी की डेफिनेशन कहां गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अब वो ये कहना शुरू कर देगा कि इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक लेके ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसलिए वैलेंसी 1 है। तो इलेक्ट्रॉन ले और देकर अगर ऑक्टेट पूरा करना है, बात ऑक्सीडेशन स्टेट की कीजिए। जब इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट पूरा करता है कोई, तो वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आती है, और जब इलेक्ट्रॉन लेकर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करता है तब ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आती है। तो मैं सब बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि वैलेंसी एक आउटडेटेड कंसेप्ट है, कंफ्यूज करने वाला कंसेप्ट बनता है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट पढ़े, वो वैलेंसी की जगह ही मॉडर्न कंसेप्ट है, जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा आपको कि एटम कैसे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्योंकि वैलेंसी तो बिना सिंबल के होती है, ना पॉजिटिव होता वैलेंसी के साथ, ना नेगेटिव होता। ऑक्सीडेशन स्टेट विद सिंबल होती है, +1 या नेगेटिव, यानी विद साइन, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो वो आपको ज्यादा अच्छी क्लियरिटी देती है कि एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? तो बच्चों बड़ा अच्छा लगा आप सबसे चीजें डिस्कस करके। फिर भी किसी की क्वेरी हो तो आप SPSTI के फेसबुक पे डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मैं अपना फोन नंबर दे दूं। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो मैं अपना फोन नंबर आपको दे देता हूं, आप इस फोन नंबर पे भी पूछ सकते हैं। बेटर ये है कि आप SPSTI की वेबसाइट पे या SPSTI के फेसबुक पेज पे या मेल करके SPSTI को अपना डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म तो वही है। लेकिन अगर किसी को पर्सनल फोन नंबर चाहिए तो मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रहा हूं। 9355252750 ये फोन नंबर है जिस पे आप डायरेक्ट क्वेरी भी पूछ सकते हैं। पर बेटर ये रहेगा कि आप मेल करें SPSTI को अपने डाउट के लिए। तो आपकी क्यूरियोसिटी का हम वेलकम करते हैं, क्योंकि जो क्यूरियस बच्चे होते हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी है, चीजें जानने की जिज्ञासा है, उनसे बात करने में, उनको टीच करने में, उन्हें चीजें बताने में हमें भी मजा आता है। वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जरूर मिलूंगा इसी SPSTI के प्लेटफॉर्म पे, और मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। वो लेक्चर भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। इनऑर्गेनिक की स्पाइनल कोड माना जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। जिसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है उसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली नेक्स्ट वेडनेसडे को, वैसे तो प्लान करेंगे हम बैठ के कि वो कब हो सकता है, आपको पोस्ट आ जाएगा उसका। तो हाँ, एक बात और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। देखिए SPSTI बड़े टेक्निकल और बड़े बढ़िया काम करती है, तभी मुझे अच्छा लगता है इन लोगों के साथ काम करना, क्योंकि SPSTI का प्लेटफॉर्म ऐसा है जो
साइंसेज और मैथ्स को लेके पैशनेट है। अब देखिए सोलर एक्लिप्स को ले लीजिए, सोलर एक्लिप्स का ये लाइव दिखाएंगे अपने फेसबुक पेज पे 21 जून को, ठीक है। बकायदा वहां टेलीस्कोप लगेगा एक बड़ा शानदार, और आपको लाइव दिखाया जाएगा सोलर एक्लिप्स। तो ये भी आप SPSTI के फेसबुक पेज से आप जुड़े रहिए, ताकि आपको पता लगे कि 21 जून को सोलर एक्लिप्स के इवेंट पे क्या कर रहे हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं अपना सोलर एक्लिप्स। और इस बार का सोलर एक्लिप्स तो वैसे भी कुछ खास है, विशेष है, इसलिए आप 21 जून को सोलर एक्लिप्स भी देख सकते हैं फेसबुक पेज पे SPSTI के लाइव। वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। ओके थैंक्स, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कस करके अगेन। ओके थैंक्स। थैंक यू प्रोफेसर विवेक शर्मा जी, और सभी हमारे व्यूवर्स जो हमारे साथ फेसबुक पर इस समय जुड़े हुए थे। और जैसा कि अभी अनु सर ने मैसेज डाला है कि जितने भी बच्चों ने ये वेबिनार अटेंड किया है, हम उन सभी बच्चों को ई सर्टिफिकेट देंगे। डिटेल्ड फीडबैक आपको देना है इस वेबिनार के बारे में। और मेल आईडी आप नीचे देख रहे हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@spsti.org। इस ईमेल आईडी पर आप सभी बच्चे अपना डिटेल नेम वगैरह भेजेंगे और हम सभी बच्चों को ई सर्टिफिकेट देंगे कि आप लोगों ने इस वेबिनार में हिस्सा लिया। तो थैंक यू वंस अगेन। और एक दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण हम अपने सोसाइटी के पेज पर लाइव दिखाने जा रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे उस दिन हमारे पेज पर बने रहें। पूरा जो सूर्य ग्रहण है आप लाइव अपने मोबाइल स्क्रीन पर घर बैठे ही उसको देख पाएंगे। और जैसे कि प्रोफेसर विवेक शर्मा जी ने बताया कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो कुछ विशेष है। विशेष इसलिए है कि वो कुछ एरिया से होकर गुजर रहा है, और प्रॉपर हम उसको अपने टेलीस्कोप के माध्यम से आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 21 जून को आप हमारे फेसबुक पेज पर बने रहें। धन्यवाद। Going to end the session. अब हम सेशन को एंड करने जा रहे हैं। तो सभी का वंस अगेन थैंक्स।